चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पनत्तो धमो लोगुतमा चत्तारि शरणं पौजामि अर्हंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भवसागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये सो सदाय मनोवांछित फलदाता दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने भवे भावे दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने मने लागो छे प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावाने प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावाने भवन मा भूलो पड़ो સ્વીકાર કર્યો ખરો અંતરમાંથી એને શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થાય અંતરમાંથી તો એને સ્વીકાર કર્યો છે. ત્રિકાળ શુદ્ધ દ્રવ્ય પોતે શુદ્ધ ને બધી રીતે શુદ્ધ છે એનો સ્વીકાર કર્યો છે. એ પોતે અંદર એવી જાતની અંતરમાંથી પ્રતીક પ્રગટ થાય એની શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થાય એની સ્વાનુભૂતિ પ્રગટ થાય તો વાસ્તવિક એને સ્વીકાર કર્યો છે. નહીતર એને બુદ્ધિથી વિચાર કરીને સ્વીકાર કર્યો છે. ખરો સ્વીકાર તો એને કહેવાય કે ત્રિકાળી દ્રવ્ય ઉપર બરાબર શ્રદ્ધા થાય, યથાર્થ કે હું તો અનાદિ અનંત શુદ્ધ બધી રીતે શુદ્ધ છું. પારિણામિક ભાવ અનાદિ અનંત શુદ્ધ છે એને તે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય બધી રીતે શુદ્ધ છે. એમ પ્રગટ પર્યાયમાં શુદ્ધતા છે, બાકી બધી રીતે શુદ્ધ છે. એવી જાતની એને પ્રતિ દ્રઢ થાય ને એ જાતની પરિણતિ પ્રગટ થાય તો એને સ્વીકાર કર્યો છે. એની દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાય છે. જ્ઞાનમાં બધું જાણે છે, દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાય અને નાયકની ભેદ જ્ઞાનની પરિણતિ નાયકની નાયક ધારા પ્રગટ થાય, સ્વાનુભૂતિ થાય તો એને સ્વીકાર કર્યો છે. દ્રવ્યની દ્રષ્ટિમાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના ભેદ પાડીને જાણતું નથી. એ તો એક દ્રવ્ય પર દ્રષ્ટિ મૂકે છે, એમાં એને બધું ભેગું આવી જાય. એને જુદું નથી. ભેદ પાડીને દ્રષ્ટિ ભેદ નથી પાડતી. જ્ઞાનમાં બધું જાણે છે.
જ્ઞાન પણ બી વર્તમાનમાં અભેદ થઈ જાય છે ને ઓ કાલમાં તો સહાનુભૂતિ વખતે તો જ્ઞાન અભેદ એટલે જ્ઞાન પોતાને જાણે છે. જ્ઞાન તો પોતાના ગુણોને જાણે છે, પોતાની પર્યાયને જાણે છે. એ બહાર ઉપયોગ જતો તો એ જતો નથી. બાકી પોતે પોતાને સ્વને જાણે, પોતાના ગુણોને જાણે, પોતાની પર્યાયોને જાણે છે. દ્રષ્ટિ અભેદ છે પણ જ્ઞાન તો બધું અભેદ ભેદ બે ને જાણે છે. દ્રવ્ય પોતે અનાદિ અનંત, એમાં ગુણના ભેદ વસ્તુ ભેદ નથી પણ લક્ષણ ભેદ છે. એને પર્યાયમાં અંશ અંશીનો ભેદ છે. એ જેમ છે એમ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જ્ઞાન બરાબર જાણે છે. સ્વાનુભૂતિ વખતે અભેદ થઈ જાય છે એટલે એ કઈ જાણતું નથી એવું નથી. એમ કે એક કઈ ગુણ પર્યાય ને એ કઈ જાણતું નથી જ્ઞાન એવું નથી. સ્વાનુભૂતિ વખતે એને બધું જાણે છે. સ્વાનુભૂતિમાં પોતે દ્રવ્યને અભેદ જાણે છે, ગુણના ભેદ જાણે છે, એનું વેદન જાણે છે. સ્વાનુભૂતિમાં શુદ્ધ પર્યાયને જાણે છે. જ્ઞાન બધું જાણે છે. જ્ઞાન પોતાની અનુભૂતિની પર્યાયને જ્ઞાન ન જાણે તો બીજું કોણ જાણે છે. જ્ઞાન બધું જાણે છે. અભેદ થઈ જાય એટલે કઈ જાણતું નથી. એની વેદનની પર્યાયને પણ જાણતું નથી. એમ નથી જાણતો થકો અંતર આનંદના વેદનમાં મગ્ન થઈ જાય છે. ઓ કાલ જાણતો થકો વિકલ્પ નથી, નિર્વિકલ્પ છે. આકુળતા નથી, રાગ નથી. શાંત દશા, શાંતિમય દશા, આનંદમય દશા में જાણતો થકો લીન છે आत्मा। थोड़ा जी साहब फरमाते हैं कि प्रदेश का तो प्रत्यक्ष बना होता नहीं अनुभव के काल में, तो मात्र राग का रहित जो दशा अंतर में आई है उस राग रहित दशा में ही आनंद का वेदन लेकर रुक जाता है ज्ञानंद में। प्रदेश को जानने तक कई प्रयोजन नहीं। ज्ञान पोते स्वानुभूतिનું વેદન કરે છે। રાગ છૂટી ગયો એટલે પોતે તો પોતાનું અસ્તિત્વ છે ને, કઈ શૂન્ય નથી થઈ ગયું। રાગ છૂટી ગયો પણ પોતે આત્મા તો ઉભો છે। નિર્વિકલ્પ દશામાં આત્મા ઉભો છે। વિતરાગી દશામાં રાગ છૂટી ગયો એટલે અંદરથી આત્માની વિતરાગી દશા પ્રગટ થાય છે। અંશે રાગ છૂટી ગયો, પૂર્ણ વિતરાગ નથી પણ અંશે વિતરાગી દશા છે। એટલે પોતાનું વેદન છે, પોતાની વેદનની દશાને જાણે છે। પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ભલે નથી, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાની છે। પ્રદેશ ને બધું કેવળ જ્ઞાની જાણે છે। આ પ્રત્યક્ષ નહીં હોવા છતાં એ સ્વાનુભવ પ્રત્યક્ષ છે। મતિશ્રુત પરોક્ષ હોવા છતાં પણ એ સ્વાનુભૂતિ એની પ્રત્યક્ષ છે। વેદન અપેક્ષા એ પ્રત્યક્ષ છે, એ કઈ કોઈને પૂછવા જવું પડતું નથી। સ્વાનુભૂતિ વેદન અપેક્ષા એ પ્રત્યક્ષ છે। રાગ છૂટી ગયો એટલે શૂન્ય થઈ ગયો એમ નથી। રાગ છૂટી ગયો તો અંતરમાં જે આત્મા વિતરાગી રૂપે નિર્વિકલ્પ રૂપે હતો એ આત્માની સ્વાનુભૂતિ પ્રગટ થાય। અદભુત અનુભવ દશા સિદ્ધ જેવો અંશ પ્રગટ થાય છે। જાગ્રત દશા છે। રાગ છૂટી ગયો શૂન્ય દશા નથી, જાગ્રત દશા છે। જડ જેવો નથી હો ગયા। હા, જડ જેવો નથી થઈ ગયો। બહારનું જાણવાનું છૂટી ગયું ને રાગ છૂટી ગયો એટલે જડ જેવો થઈ ગયો, કઈ જાણતો નથી એવું નથી। પોતાનું વેદન પોતાને પ્રત્યક્ષ છે। કેવળ જ્ઞાની પૂર્ણ પ્રત્યક્ષ છે। પોતે પોતાને જાણે, બીજાને જાણે, એનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ થઈ ગયું છે। અને એને મન પણ મનના વિકલ્પો સારો બધા અંશ રાગના અંશ મૂળમાંથી ક્ષય થઈ ગયા છે। અને રાગના અંશ મૂળમાંથી ક્ષય નથી થયા પણ અમુક અંશે છૂટી ગયો એટલે જાગ્રત દશા છે, સ્વાનુભૂતિની દશા છે। પોતે પોતાની અનુપમ અદભુત દશાને વેદે છે કે જેને બહારની કોઈ ઉપમા આપી શકાતી નથી। ચૈતન્ય સ્વાનુભૂતિની બહારની કોઈ ઉપમા લાગુ પડતી નથી। અદભુત અનુપમ દશા છે।
પ્રાપ્ત કરી લે અને મનુષ્ય પ્રાપ્ત ન કરે તો મનુષ્યમાં કઈ વધારે બુદ્ધિ હોય તો વધારે અટવાતો જાય છે. कौन प्राप्त करे? દેઠકો તો વધારે અટવાતો એવું કાંઈ નથી. મનુષ્ય વધારે અટકાવે ના. પંચમ કાળમાં એવી યોગ્યતાવાળા જીવો છે કે એને દુર્લભ થઈ પડ્યું છે. મનુષ્ય વધારે અટવાય એવું નથી. એ અત્યારે દેઠ કોઈ કરી શકતો નથી. બધાને દુર્લભ થઈ પડ્યું છે અને મનુષ્યોને દુર્લભ થઈ પડ્યું છે. ચોથો કાળ જે સુલભ કાળ હતો, માણસ જીવોની પાત્રતા વધારે ઉગ્ર હતી. પાત્રતા એવા પાત્રતાવાળા જીવો હતા. સાક્ષાત ભગવાનનો યોગ હતો, સાક્ષાત કેવળ જ્ઞાનીનો યોગ હતો. ચોથો કાળ હતો અને જીવો પણ એવા તૈયારીવાળા હતા. એટલે મનુષ્યોને તો કેટલાને થાય પણ તિર્યન જેવાને પણ થાય એવો કાળ હતો. મનુષ્યોને તો ક્ષણ ક્ષણમાં જલ્દી થઈ જતું પણ દેડકા જેવા તિર્યંચોને પણ થતું હતું. એવો એ કાળ સુલભ કાળ ને એવા પાત્રતાવાળા જીવો અહીં જે જન્મે એ અમુક પાત્રતા એવી જ લઈને આવે છે કે જેને બધું દુર્લભ થઈ પડે છે. એટલે મનુષ્યોમાં એટલી તૈયારી નથી ને અત્યારે તિર્યંચોમાં તો તૈયારી જરાય દેખાતી નથી. અત્યારે તિર્યંચોમાં સમજવું ને બહુ મુશ્કેલ છે. અત્યારે મનુષ્યોને દુર્લભ તો તિર્યંચોને દુર્લભ છે. ચોથા કાળમાં મનુષ્યોને તો ઘણાને થતું અને તિર્યંચોને પણ થતું, બધાને થતું. पूरा होता है केवल ज्ञान चारित्र होता है, तब केवल ज्ञान पूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है. मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से शुरू होता है. सुबह देखो बत्ती जाते चली थी काउंसिल में गुरुदेव के तो इसके अंतर्गत आ रहा है कि वास्तव में सम्यक दर्शन की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन जब हुआ तब मोक्ष मार्ग शुरू होता है. चारित्र की अपेक्षा से ये केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है. पूर्ण होता है पीछे. अंश तो पहले प्रकट होता है. पहले अंश प्रकट होता है. पूर्णता चारित्र होवे तब होता है. मार्ग शुरू हो जाता है और साक्षात मोक्ष में केवल ज्ञान की अपेक्षा है, चारित्र की अपेक्षा है मोक्ष मार्ग मुनि की दशा में होता है. रुचि तो अपने करनी पड़ती है. रुचि बाहर की रुचि लगी है, आत्मा की महिमा नहीं आती, आत्मा को पिछाने का विचार नहीं करते, आत्मा की महिमा नहीं आती. रुचि कहाँ से लगे? महिमा सब बाहर की है. कोशिश तो बहुत करती है. कोशिश करते तो भी पूरी कोशिश नहीं होती. कारण थोड़ा देते कार्य कहाँ से आवे? जीव को महिमा कैसे आ रहा है आत्मा की? ऐसा विश्वास कैसे बैठे आत्मा का? बिल्कुल विश्वास में आत्मा का स्वभाव को पिछाने तो विश्वास में बाहर देखे तो बाहर क्या, भीतर में देखे तो क्या शांति नहीं है. आकुलता आकुलता लगती है. तो आकुलता लगे तो सुख कहाँ है? सुख सुख करते ही सुख बाहर से मिलते नहीं. सुख तो भीतर में आत्मा में होता है. आत्मा में सुख होता है. इसे प्रतीत करनी चाहिए, ऐसा निर्णय करना चाहिए, स्वभाव को विचारना चाहिए, सब नक्की करना चाहिए, तब हो सकता है. बाकी बाहर तो बहुत करते ही पण भीतर में शांति आकुलता लगती. तो आकुलता के आत्मा का स्वभाव नहीं है. ये शांति सुख आत्मा का स्वभाव है. इसमें विचार करके निर्णय करना चाहिए. सुख स्वभाव को देखे तब सुख की महिमा आए, दुख लगे संसार से तब आत्मा की रुचि लगे. आत्मा में सब बड़ा है. आत्मा अनुपम तत्व है. आत्मा अद्भुत तत्व है. सब जगत के विभाव से भिन्न आत्मा कोई अद्भुत तत्व अनुपम. इसका आश्चर्य लगना चाहिए, इसकी महिमा लगनी चाहिए, तब हो सकता है. एक एक बोल में बहुत आया. जयंत में आपके किताब में एक एक बोल में महिमा भरी हुई है. आत्मा एक एक बोल करो. ऐसी स्वानुभूति सम्यक दर्शन ये आत्मा की अपूर्वता अद्भुत अनुपम. सम्यक दर्शन में चक्रवर्ती गृहस्थाश्रम में हुए तो भी आत्मा की स्वानुभूति होती है. ऐसा है. पीछे इसकी पूर्णता करने के लिए और मुनि दशा आती. चारित्र कम है तो पूरी लीनता नहीं होती. लीनता मुनि दशा में होती है. इसलिए मोक्ष मार्ग वहाँ से शुरू हो जाए. सम्यक दर्शन की अपेक्षा पहले शुरू हो जाए. शुरुआत तो वहाँ से होता है.
भव का अभाव हो जाता है समझ। ये तो अपूर्व है, आत्मा अनुपम अपूर्व है, इसकी महिमा आवे, इसकी लगनी लगे तब हो सकता है। सर्व समर्पण करे तब आत्मा हाँ, सर्व इधर इधर उधर कहाँ रुक जाते, पर की महिमा आते, आत्मा की महिमा आती नहीं। आत्मा को सर्व समर्पण कर दे, बस आत्मा ही कोई अपूर्व अलौकिक वस्तु। इसको बताने वाला गुरुदेव तो अपूर्व वाणी वर्षता उनका तो उपकार कोई जीवन में नहीं भुला। हाँ, ऐसा वर्षों સુધી वाणी वर्षावे से अपूर्व मार्ग बताया। तो ऐसे आत्मा को अपूर्व मुक्ति का मार्ग सबको जगाया, सबको आखा हिंदुस्तान में सबको जगाया। सब रुचि बाहर में थी, क्रिया में, सब भीतर में। भीतर में मोक्ष का मार्ग है, गुरुदेव बहुत समझाया। कर्ता बुद्धि कैसे टूटे? कर्ता बुद्धि कैसे टूटे? कर्ता बुद्धि नायक को पीछा नहीं, तब कर्ता बुद्धि टूटती है। जो नायक में ज्ञाता ही हूँ, एक ज्ञाता का विश्वास आना चाहिए, ज्ञाता की प्रतीत आना चाहिए कि मैं नायक हूँ, मैं तो जानने वाला, मैं तो उदासीन ज्ञाता ही हूँ, पर को मैं कर नहीं सकता हूँ। पर तो स्वतंत्र द्रव्य है, कुदरत द्रव्य गुण पर्याय इसका स्वतंत्र है, इसका गुण पर्याय सब स्वतंत्र है। कोई को मैं फेर भी सकूं ऐसी शक्ति मेरे में नहीं है। सबका पुण्य पाप के उदय से सब चलता है, तो भी मैं करूं करता है। मैं तो नायक हूँ, नायक की प्रतीत आवे, नायक का विश्वास आवे तब हो सकता है। कर्ता बुद्धि टूटे में इतना सत्य परमार्थ कल्याण जितना एक ज्ञान है, बस एक नायक एक ज्ञान में इसके नायक इसमें संतुष्ट था, इसमें तृप्त था, इसमें जो तो अंदर अनुपम सुख प्रकट, इसमें ज्ञान मात्र आत्मा में संतुष्ट हो जाए। सत्संग के महत्व, सत्संग समागम का महत्व बताते हैं, राजचंद्र जी बताते हैं इसको कुछ महत्व। सत्संग अनादिकाल से ये अपना पुरुषार्थ संबंध है, तो बाहर असत्संग में सब ऐसा परिणाम के असर सत्संग में यथार्थ विचार करने, ऐसा साचो तत्व समझवाना योग मिले, साची वाणी मिले, इसलिए विचारने का अपने को प्रयत्न था। ये सत्संग का महत्व है। और सत्संग में तो विचार ऐसे पुरुषार्थ मंद है जहाँ तहाँ विचार चला जाता है और निर्णय नहीं हो सकता है। मतलब जिसने मार्ग समझा है, जो मार्ग गुरुदेव बताते थे, वो मुमुक्षु वांछन यथार्थ बात करते हैं, तो परिणाम इसमें जाए तो विचार करे, रुचि बढ़े, ऐसा सब हो। कैसे मैं आत्मा को प्राप्त करूं, ऐसा सत्संग में हो सकता है। और सत्संग में अंदर में तड़प लगे तो अपनी ऐसे सत्संग में जाएगा, दौड़ेगा। अपने तड़प लगे, लगने लगे तो सत्संग में जाए, नहीं तो कुटुंब में सब ऐसे व्यापार धंधा, इसमें परिणाम तो ऐसे चला जाता है। गुरुदेव ने बहुत दिया, अद्भुत कर गए वो तो। अब भी देखे तो कन में देख करके आंसू बहते हैं। सुबह से कि क्या गुरुदेव आज चारों तरफ से कितनी करुणा, सारा भारत उलटता था उनके लिए यहाँ पे। 45 वर्ष यहाँ रहकर सब कण कण में गुरुदेव सब इसमें विराजते थे, स्वाध्याय सब गुरुदेव की वो विराजता था, तब सब कोई अलौकिक सब देखते। और देगा है गुरुदेव तो देगा है, स्वयं का पुरुषार्थ करे ये जीव को और सुधरे। આત્માનુભૂતિનો સ્વાદ કેવો? આત્માનુભૂતિનો સ્વાદ એ કોઈ એની इसकी उपमा नहीं हो सकती। आत्मानुभूति की कोई उपमा नहीं है, ये तो अनुपम तत्व है। इसको कोई ये जड़ पदार्थ की उपमा चैतन्य को मिल नहीं सकती। ये विभाव का, कोई राग का, कोई देवलोक का, देवों का, कि कोई की उपमा इसको नहीं लागू होती। ये तो अनुपम है। तो चैतन्य तो कोई आश्चर्यकारी तत्व है। इसका स्वाद अनुपम, इसकी चैतन्य, इसका ज्ञान अनुपम, ये अगाध ज्ञान से भरपूर, एक समय में लोकालोक को जानने वाला, ऐसी अनंत शक्ति, अनंत गुणों से भरपूर, अद्भुत अनुपम आनंद गुण से भरपूर।
एक ही ये सब बोलने में कि उपमा में नहीं आता है। इसमें वो तो स्वाद चखा वही जाने, दूसरा नहीं जान सकता। इसकी उपमा नहीं हो सकती। उपमा क्या तो अनुपम अमृत स्वाद के अनुपम की उपमा नहीं होती। गया विकल्प टूट गया, निर्विकल्प स्वरूप आत्मा में लीन हो गया, ये वो इसका स्वाद वो ही जानते हैं। जगत दुनिया से कोई अलौकिक दूसरी दुनिया में चला जाता है। अलौकिक जीवन है ज्ञानी का। हाँ, अलौकिक है इसका। अज्ञानी थोड़ी पहचान में भी ये स्वानुभूति हो सकती है, सम्यक दर्शन हो सकता है। इस जीव को भाव संवर कैसे प्रकट हो? भाव संवर तो ये सबका एक ही मार्ग है, सबका एक ही है। जब नायक को पिछाने तब संवर होता है, एक ही बात है सबकी। मुक्ति का मार्ग एक है, संवर का मार्ग, निद्रा का मार्ग, सम्यक दर्शन, सबका मार्ग। जो मार्ग सम्यक दर्शन का वही मार्ग चारित्र का, सो ही सब एक ही मार्ग है, दूसरा नहीं है। कोई एक में कोई दूसरा मार्ग, दूसरा में दूसरा मार्ग नहीं। आत्मा ज्ञाय को भेद ज्ञान कर, भेद विज्ञान तो सीधा सीधा एक भेद सिद्ध हुआ तो भेद विज्ञान से हुआ, नहीं हुआ तो भेद विज्ञान के अभाव से नहीं हुआ। एक ही मार्ग है, भेद विज्ञान कर, आत्मा को पहचाने, द्रव्य पर दृष्टि कर, बस नायक को न्यारा जाने। नायक की न्यारी परिणति, क्षण क्षण में न्यारा, खाता पीता सोता स्वप्न में न्यारा न्यारा रहे। ये स्वानुभूति प्रकट हुई तब भाव संवर होता है। तब इसमें विशेष लीनता होगी तो विशेष निद्रा होती है। ये सम्यक दर्शन अमुक अंश में विशेष लीनता होगी तब चारित्र दशा होती। मार्ग तो एक ही है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। आज दूसरा गोत इतना दूसरा है, इतना दूसरा। एक आत्मा को पिछाने सब आ जाता है, और सबको पिछाने आत्मा को नहीं पिछाने तो कुछ जाना नहीं है। एक आत्मा को पिछाने इसमें सब आ जाता है। आत्मा को जाना है सब जाना, और आत्मा को नहीं जाना तो अज्ञा रंग का ज्ञान हुआ तो भी कुछ नहीं हुआ। तो आगम ज्ञान पर इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि ज्यादा खूब जाने तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है। हम प्रयोजनभूत जाने तो भी आत्मा का स्वभाव प्रकट होता है। आगम ज्ञान होता है, भगवान की वाणी, भगवान ने क्या किया शास्त्र में आते हैं। आगम ज्ञान आते हैं, विशेष जाने तो अच्छा है, थोड़ा जाने तो भी हो सकता है। शिव होते मुनि कुछ जानता नहीं था, एक शब्द का ज्ञान भी भूल जाता था। मार उस्मार तो से राग द्वेष करवानो गुरु की भूल गया तो मास तुस हो गया। तो इसका भाव समझ लिया कि बोली बाई दाल ने खोतरा जुदा करते थे, तो ऐसा मेरा गुरु किया कि आत्मा भी न और विभाव भी नहीं। ऐसा भेद ज्ञान करके अंतर में उतर गया। मूल प्रयोजन भूत तत्व को जाने ज्ञान होवे तब हो सकता है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।